we started with that chapter because that could be read. आप अपने आप read कर सकते हो. You can understand a lot on your own also. So that was like something easier one. In case you found it difficult. Okay. Now we are going ahead with more biological, more related topic where the depth will be more, diagrams will be there, intensity of biology will be more. There will be lots of things which will be involved. So first chapter I started with quite general one, जो पढ़ के कर सकते हो. But now there will be diagrams, you will have to practice them. Especially the textual one, images में हम बहुत सारे बाहर के diagram भी डाल देते हैं. Correct, to make you understand. But then there are some diagrams in textbook which you need to know, you must know. So now we'll move to a more chapter, like more biologically inclined chapter where there will be systems and working. Okay. So we'll start with chapter number 8, that is respiration and circulation. Okay. So circulation को मैं side में कर रही हूँ, दो parts में है chapter. Circulation में अभी begin नहीं कर रही हूँ. I'm starting with respiration. You can say I'm starting with a part 1. Chapter number 8 का part 1 से begin कर रही हूँ मैं. Respiration. Now class, till last year, this chapter was in 11th standard. Okay, this chapter was in 11th standard. आपने 11th में एक chapter already किया है, respiration. तो फिर immediately mind में आता है कि ये second respiration क्या है? Okay, what is this second respiration? आपको याद है 11th standard का थोड़ा सा रिकॉल करोगे तो ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, माइटोकॉन्ड्रिया, ईटीएस, ये पार्ट हमने किया. ठीक है, तो ये सेकंड पार्ट क्या. नाउ यू विल बी हैप्पी टू नो कि जो हमने कर लिया है वो डिफिकल्ट और जो अब 12th में आया है वो इजियर. रेस्पिरेशन दो पार्ट्स में है. जो आपने ऑलरेडी कर लिया है दैट इज इजियर, दैट इज डिफिकल्ट. और अब जो हम वो वही I'll be sharing go a bit slow because we are towards biology और नहीं. पर हर इमेज टेक्सचुअल नहीं, इसलिए हर इमेज को उठा के प्रैक्टिस नहीं करना है. ठीक है, इसलिए मैं आपको स्लाइड एट द एंड ऑफ द चैप्टर भेज रही हूँ ताकि आप टेक्स्ट बुक खोलते रहे. ओके, बहुत सारी चीजें टेक्स्ट बुक में सिर्फ रिटर्न है and there is no image for it, but to make you understand we draw on the board or we show you a picture. Correct? So let's move ahead. I'm moving to respiration, chapter number 8. Okay, just give me 2 minutes. Voice का problem है क्या? Let me know. Just give me a second, class. 1 minute. So many slides that I'm confused. Which one I'm sorry. Sorry, class, not this. Sorry, another one. Respiration. One minute, class. Oh, I think this should be the correct one. Yeah. आवाज आ रही है अभी आपको क्लियरली? किसी का तो ऑडियो ऑन है क्लास. प्लीज पुट योर ऑडियो डाउन everybody. I hope you can do that. Okay, am I audible? Somebody can indicate. Yeah. Okay, now class, chapter number 8, as I told you, respiration. यहाँ पे आपको क्लियरली एक डायग्राम दिख रहा है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, जस्ट एज अ सिंबॉलिक डायग्राम देयर. नाउ व्हाट इज द चैप्टर अबाउट? ओके, हमने लास्ट ईयर जो चैप्टर किया था दैट वाज रेस्पिरेशन इनसाइड अ सेल, इंट्रासेल्युलर. लुक एट द वर्ड इंट्रासेल्युलर. और अब जो हम कर रहे हैं दैट इज आउटसाइड, मींस वी आर गोइंग टू डील
In simple word, I'm using a very simple word, breathing. I'm using a simple word for it, breathing. So class, in respiration, there are two parts. One, you take in oxygen, you give out carbon dioxide. In that part, you involve your lungs, your alveoli, your nose, your respiratory system, hemoglobin, blood, and you send oxygen to the cell. Then cell picks up that oxygen, picks up food, and gives us energy. And gives us energy. So ये food, oxygen, energy part हो गया. Okay, अपने cell के अंदर क्या होता है? That you have done. That is intracellular. But you did not do how oxygen comes in, then how CO2 goes out, what is hemoglobin का role, what are alveoli, what are lungs, how much oxygen is necessary, if we go breathless what happens, what is a ventilator. आजकल आप बहुत सुन रहे होंगे term ventilator. We are dealing with a disease where ventilator is required for many patients, correct? You are dealing with a respiratory disorder actually nowadays. So the term relates to respiratory system. अगर मैं simple word में बोलूं तो इस chapter का नाम होना चाहिए था respiratory system, जो last year तक था. Now class, NCERT जो नीट के बच्चे वो याद रखेंगे, it is still in 11th for them. इन नीट की टेक्स्ट बुक में कहाँ पे ढूंढना चैप्टर 11th में, 12th में नहीं है ये, और उसका नाम है breathing and exchange of gases. What is the name of that chapter? Breathing and exchange of gases. Am I very clear with this? नीट वाले बच्चे प्लीज नोट कर लेंगे. It comes in the 5th unit, breathing and exchange of gases, standard 11th. Okay, NCERT में आपको ढूंढना है. और हमारे चैप्टर से जब आप कंपेयर करोगे अभी के चैप्टर से, तो वो काफी छोटा है नीट में. ओके, और इजियर भी. बट एनीवे, इफ यू आर लर्निंग समथिंग मोर डिटेल्ड एंड डिफिकल्ट, इट विल हेल्प. ठीक है, सो टेक इट पॉजिटिवली एंड डू इट वेल. नाउ आई बिगिन. All organisms, they consume food. Okay, they consume food, and this food is transported to all the part. But you know, before transporting we digest. That means हम क्या forward करते हैं? Soluble food, that is going acid. So food to energy conversion is done by respiration. Food से energy में conversion कौन करेगा? Respiration. So in one line, respiration is a energy releasing process. Respiration is a energy releasing process. But class, is this definition over? No. There are drawbacks here. There are drawbacks here. Respiration is an energy releasing process, but biological. That means for respiration, you are supposed to be a living organism. अगर मैं कुछ wood burn करूं, उससे भी तो energy आ रही है. So can I call it as respiration? No, that is not respiration, because wood is not a living thing here. So you have to keep in mind, respiration is a biological process in which food is oxidized to generate energy. ठीक है, अब हमारा definition complete हुआ. To add up, we will add, it is a catabolic process, breaking down. It is a exothermic process. Heat will be released. Okay, energy in form of heat will be released. So these words are related to it. Now, if you look at our diagram here, you can see the body. What is the food which we eat? Carbohydrate, fats, etc. We keep on eating. That goes to the body. वहाँ पे क्या हो रहा है? Metabolism, digestion, respiration, and body generates what? Heat. You can see that word heat there, correct? So this step is done by respiration. So it is a metabolic reaction. But step में और एक important चीज है, release हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. तो वो भी हमको बाहर थ्रो करना है. एंट्री किसकी हुई क्लास? फूड की. यू नो, और एक एंट्री होने वाली है ऑक्सीजन की. एंड देन what will happen? What will be throw out? Carbon dioxide, and body will receive
heat, which is our source for energy. So this is the background of the chapter which we are moving into, and let's move ahead. We have already studied that in process of cellular respiration, energy in the food is converted into energy that can be used. अपने mind में recall कीजिए, energy that can be used, एक ही word आएगा, ATP, adenosine triphosphate, because food cannot be used directly, oxygen cannot be used directly, they both have to combine, they both have to react and generate ATP. ये हमने last year भी किया, ठीक है? And this is given in the textbook, so I have again repeated it. Now what happens in cellular respiration? Look carefully, glucose and oxygen are converted into carbon dioxide and water and transformed into ATP. By how many steps? 3 steps. Glycolysis, Krebs cycle, ETS. ये अभी तक हमारा रिवीजन चल रहा है जो टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है इतना, ठीक है? ग्लाइकोलिसिस, Krebs cycle, ETS. अगर आपको याद है ग्लूकोज से पायरुविक एसिड को हम Krebs cycle में ले जाते हैं, वहां पे ब्रेक डाउन होता है, यू गेट NADH2, FADH2, NAD को हम ETS में ले जाते हैं and we generate ATP. This is something you need to recall. ये आपने पढ़ा है, और ये रहा हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन, a very world famous equation, आप लोअर क्लास से कर रहे हैं. The first is sugar, correct, that is in glucose form here, added with oxygen, you can see 6 molecule, gives out carbon dioxide, it also gives some water which is called metabolic water and ATP. To be very precise, one glucose gives me 38 ATP. हम ऐसा भी लिखते हैं reaction में, correct? One glucose molecule gives me 38 ATP if it is completely oxidized. So reactant products, this is our very typical standard equation and mentioned in your 12th standard textbook again. 11th में भी था, अभी भी है, ठीक है? So we move ahead. Now class, हमारा चैप्टर एक्चुअली यहाँ से शुरू है, ये वाला चैप्टर. क्या अंदर लेना है? ऑक्सीजन. क्या बाहर देना है? CO2. ठीक है, लेना देना ठीक है, एटमॉस्फेयर से मिल जाएगा, लेकिन उसको रिसीव कौन करेगा? So we need a respiratory system. So we need a respiratory system to work, and we are coming to those systems. ठीक है? Now when you look at respiratory system, पहला टर्म respiratory surface. क्लास फिलहाल मैं सिर्फ ह्यूमन के बारे में बात नहीं कर रही, आई एम टॉकिंग फॉर ऑल. आई एम टॉकिंग फॉर ऑल, फिश हो, क्रैब हो, अर्थवर्म हो, बैक्टीरिया हो, एनीबॉडी. सो रेस्पिरेटरी सरफेस, main features. Here there is a 2-mark question in front of you. What are the characteristics or features of a respiratory surface? Now look here. First, should have large surface area. मतलब सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होना चाहिए. तो कैसे? हमारे लंग्स में एल्वियोलाई है, हाईली फोल्डेड. अगर आप फिश के गिल्स को देखोगे तो दे लुक लाइक कोम, करेक्ट? स्मॉल 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 फिलामेंट्स होते हैं उसमें बहुत सारे. सो दैट इज अगेन लार्ज सरफेस एरिया. मोस्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सरफेसेस आर फोल्डेड, करेक्ट? सो वी नीड मोर एरिया. प्लस इट शुड बी थिन, ताकि O2 और CO2 आराम से अंदर बाहर जा सके. अगर थिक होगा तो फिर परमिएबिलिटी ब्लॉक हो जाएगी. सो इट शुड बी परमिएबल टू अलाउ इजी डिफ्यूजन. क्या होने वाला है गैसेस का? डिफ्यूजन. गैस अंदर से बाहर और बाहर से अंदर. एक्सचेंज ऑफ गैसेस शुड बी इजी. इफ वी मेक इट वेरी टफ, वेरी प्रोटेक्टिव, नहीं चलेगा. सो इट शुड बी थिन एंड परमिएबल. और एक वर्ड है वहां पे मॉइस्ट. जैसे मॉइस्चर आता है, एक्सचेंज एंड डिफ्यूजन इजी हो जाए. एक्सचेंज एंड डिफ्यूजन बिकम्स मोर easy. This we are mainly talking for carbon dioxide and oxygen. ठीक है class, you know oxygen is a universal respiratory gas, correct? All the organisms use oxygen, and we have a second set anaerobic respiration वाली, जो वो ऑक्सीजन को भी यूज नहीं करते, करेक्ट?
थर्ड पॉइंट देखिए, शुड बी हाईली वैस्कुलर. जैसे ही टर्म वैस्कुलर आएगा, यू शुड नो वैस्कुलर मतलब ब्लड सप्लाई बहुत ज्यादा होना चाहिए. एज सून एज ऑक्सीजन कम्स, blood should receive it and take it to the cell. It should not happen oxygen is waiting there, फिर कोई कैसे जाएगा सेल के पास, ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए. हाईली वैस्कुलर मतलब very very rich with supply, blood capillaries. Okay, it should be near to the transport route. आपके लंग्स, हमारे लंग्स पिंकिश कलर के होते हैं, पिंकिश, क्योंकि चारों तरफ कैपिलरीज होती है, बहुत सारी कैपिलरीज. सो फास्ट डिफ्यूजन, फास्ट एब्जॉर्प्शन एंड फास्ट ट्रांसपोर्ट. ठीक है. शुड बी इन डायरेक्ट कांटेक्ट, या तो आप ऑक्सीजन के सोर्स के डायरेक्ट कांटेक्ट में होने चाहिए और वेरी क्लोज, मतलब रेस्पिरेटरी ऑर्गन एकदम दूर नहीं होना चाहिए. सिर्फ फिशेज है वो पानी में है, उनके गिल्स एकदम आउटवर्ड ही है तो वो दिखते हैं और फटाफट ऑक्सीजन एक्सचेंज हो जाता है. डायरेक्ट कांटेक्ट. हमारा नोज है, ठीक है, लेकिन नोज से लंग्स डिस्टेंस कोई बहुत बड़ा भी नहीं, तो वो इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाता. So should be in direct contact or should be in close contact with the source of oxygen. That means air या water. Correct? Air या water. अगर plant है तो आप soil भी बोल सकते हो क्योंकि वहां पे roots भी respiration करेंगे. ठीक है. So mainly the source is atmospheric oxygen or it is oxygen dissolved in water. Can you write a 2-mark question? This is textual words here. Absolutely textual word रखा है यहाँ पे. What are the features of respiratory surface? This may be a homework for today, okay? For 2 marks. और easy है, बहुत easy. ठीक है क्लास. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने एक इमेज ली है. देखो रेस्पिरेटरी सरफेस हमने थिन रखा है, कैपिलरी रखी है, ऑक्सीजन जा रहा है, CO2 आ रहा है, और यहाँ पे हमारी एल्वियोलाई है. यू कैन सी द ब्लड सप्लाई एकदम रिच है, फुल्ली कवर्ड, हर जगह कैपिलरी दिख रही है. ये सारी की कैपिलरी ज्यादा है और एल्वियोलाई हमको उसके अंदर कम दिख रहे हैं. व्हाई? वी वांट वेरी रिच वैस्कुलर कनेक्शन एंड वी वांट इट वेरी वेरी थिन. यू कैन सी 0.2 और 0.6 म्यू मीटर लिखा है हमने उधर. So you can see it's very very thin. We don't want thickness at all. So as per our requirement, this is quite enough. ठीक है? Are we clear with this? Now respiratory surface in human lungs. This is just a comparison to make you understand the enormous part of it. Okay? Is roughly कितना हमारा lungs का surface area अगर हम सारे alveoli को open कर दें to a tennis court, okay? To as one side of full tennis court. Getting it? 50 to 75 square meter. Class, here I'm trying to say depending on the lung capacity, okay? So you can see 540 to 800 square feet के करीब. Skin, हमारी पूरी skin जो इतनी बड़ी दिखती है वो 2 square meters तक है. वो square गलत टाइप हो गया, okay? It is meter. 2 square meters तक है. और lungs देखो कितना लंबा जा रहा है, 75, जबकि लंग्स बॉडी के अंदर है, बट वो इतने वेल डिजाइंड है कि पूरा एरिया बहुत लार्ज है. स्किन के कंपेयर में भी, स्किन के या हाउ दे मेजर है, सी वी जनरली कंसीडर वन एल्वियोलाई. अगर वन एल्वियोलाई इतना है, सपोज लेट्स से 1 सेंटीमीटर में स्प्रेड हो जाता, तो फिर वी हैव 700 मिलियन एल्वियोलाई. दैट वे वी कंपेयर, ओके? Or you can take a small portion of lungs. इधर इतने alveoli. So each alveoli, suppose 1 centimeter में कितने alveoli? So in entire lungs, how much? That way it is measured. So it is in square meter. You can see the enormous part of it. आपका skin दिखता बड़ा है ना? पूरे body के ऊपर है. आपको अगर हम किसी को बोलेंगे lung skin से बड़ा है surface area में, तो वो visible नहीं है, इसलिए वो believe नहीं कर सकते. लेकिन you should know lungs में highly folded alveolar sac and we are planning to open it. When I'm talking about area, I'm making it flat. So that is the comparison. This is just to show you the enormous part. That do we have large surface area? Yes, very large surface area.
और अंदर क्यों है, वेल प्रोटेक्टेड भी रखना है ना क्लास। लंग्स इतने सॉफ्ट है, डेलिकेट है, थिन है, तो उनको बॉडी के बाहर नहीं रख सकते। आर यू गेटिंग इट? सो दिस इज जस्ट अ कंपैरिजन, नथिंग मच। देन हम आ जाते हैं प्लांट में, क्योंकि जैसे ही आप रेस्पिरेशन बोलोगे प्लांट भी इन्वॉल्व है। एक छोटा सा टॉपिक है आपके बुक में, गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट। सो द की वर्ड इज इट टेक्स प्लेस बाय डिफ्यूजन। ओके, ऑक्सीजन कम्स इन, CO2 गोज आउट। इमीडिएटली क्वेश्चन मार्क हमारे माइंड में आता है, बिकॉज वी जनरली लर्न CO2 comes in and oxygen goes out in plant. Agreed, but that is photosynthesis. हमारा टॉपिक चल रहा है रेस्पिरेशन। तो फॉर रेस्पिरेशन प्लांट्स भी क्या लेने वाले हैं, ऑक्सीजन, और क्या देने वाले हैं, CO2। वहां पे इक्वेशन सेम है इधर भी, ठीक है क्लास। सिर्फ हमारी तरह यू कैन नॉट सी दैट ब्रीदिंग रेशियो इन प्लांट, बिकॉज उनका रेस्पिरेटरी रेट इज लो। आप एक लिविंग ह्यूमन बीइंग को देख सकते हो, उसका ब्रेथ आप देख सकते हो, यू कैन फील इट, करेक्ट। प्लांट में हम सबको ये फील नहीं होता क्योंकि बहुत सारे पार्ट्स डेड है, जाइलम डेड है, स्क्लेरेन्काइमा डेड है, पूरा बार्क डेड है, और जो लिविंग सेल्स है वो अंदर है, एंड रेस्पिरेटरी रेट इज स्लो एंड लो, सो विजिबल नहीं। बट आर दे डूइंग रेस्पिरेशन? यस, क्योंकि वो लिविंग है। व्हाट इज द प्रोसेस? सेम, डिफ्यूजन। और प्लांट के अंदर बहुत सारा एयर स्पेस है, और ऑक्सीजन मूव्स फ्रॉम दैट एयर स्पेस in continuity and CO2 comes out. So how that oxygen enters? We have three techniques. Stomata सबसे famous है, opening on the surface of leaves. You must be knowing stomata, taking CO2 and giving out O2 and water. एक बहुत कॉमन टर्म है ट्रांसपीरेशन, ठीक है, एक कॉमन टर्म है, इस साल दूसरे चैप्टर में टॉपिक भी है, ट्रांसपीरेशन इज लॉस ऑफ वाटर। तो जब भी स्टोमेटा ओपन होता है, व्हाट दे टेक इन, CO2, एंड व्हाट दे गिव आउट, H2, बट दे डोंट सिलेक्ट CO2, दे टेक फुल एयर। तो उसमें O2 भी है, CO2 भी है। ऑक्सीजन इज यूज्ड फॉर रेस्पिरेशन, CO2 फॉर फोटोसिंथेसिस। और रात के टाइम पे, रात को जब फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है, तब सिर्फ ऑक्सीजन लिया जा रहा है, करेक्ट। एंड यू नो स्टोमेटास ऑल डोंट ओपन एट नाइट, देयर इज वेरी लिमिटेड ओपनिंग, and few of them are open to keep the respiratory rate on. You must have heard कि रात को पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, करेक्ट। तो वो ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो ज्यादा CO2 दे रहा है और कम O2, और फुल डे में प्लांट क्या करता है, ज्यादा ऑक्सीजन देता है, ठीक है। सो स्टोमेटास आर लाइक नोज ऑफ प्लांट। आपके पास नोज है, प्लांट के पास स्टोमेटा है, कितना है, मिलियंस, कोई कमी नहीं है। दूसरा नोज, और एक ऑर्गन है लेंटिसेल, प्लांट का जो बार्क होता है, ओके, हार्ड पार्ट्स, सीड होते हैं, सीड की कवरिंग हार्ड होती है। लेट्स टेक कोकोनट, वेरी हार्ड, उसके ऊपर छोटी वेरी फाइन ओपनिंग्स होती है, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत कम होती है, and they are known as lenticels. They also help in taking oxygen, so they are also used for respiration. और तीसरी चीज है रूट्स, जो सॉइल में है, सॉइल में भी ऑक्सीजन है। यू मस्ट बी नोइंग कि फार्मर बिफोर पुटिंग द सीड सॉइल को लूज करता है, करेक्ट, प्लॉगिंग की जाती है, so that there is good aeration in soil. So from the roots also we can breathe. But class, ये जो root से breathing है, lenticel से breathing है, बहुत कम है. They are not very efficient. Most efficient part is stomata, which is actually made for gaseous exchange. उसका function ही gaseous exchange है. Root और bark इसलिए कि okay we can take. आपने कोकोनट देखा होगा ना, कोकोनट को अगर रख दे, हम समझो एक ग्रीन वाला कोकोनट लेते और उसको 6 महीने 8 महीने रख देते, तो धीरे धीरे वो ड्राई होता जाएगा, वो ब्राउन हो जाएगा, और अंदर का जो वाटर है वो भी पूरा ड्राई हो जाएगा, और ड्राई कोकोनट निकलेगा अंदर से। एम आई राइट? थिंक ऑन दैट। ड्राई कोकोनट देखा होगा आपने, करेक्ट, क्योंकि कोकोनट के ऊपर लेंटिसेल्स है जिसमें से वाटर इवेपोरेट
हो रहा है. ओके, यू मस्ट बी ईटिंग ड्राई फ्रूट्स. उनके सीड्स भी किससे कवर्ड है? हार्ड कवरिंग से. तो उससे भी ऑक्सीजन वाटर इवेपोरेट हो रहा है. मतलब सीड के अंदर लिविंग है ना टिश्यू, एम्ब्रियो ब्रीथ कर रहा है. रूट्स लिविंग सेल है, उनको एटीपी चाहिए. सो दो सेल्स आर ब्रीदिंग, सो दे आल्सो नीड ऑक्सीजन. जर्मिनेशन, आप एक सीड सॉइल में डालिए, फॉर दैट आल्सो यू नीड ऑक्सीजन. यू कैन नॉट जर्मिनेट विदाउट ऑक्सीजन because respiratory rate will go very very low, very very low. ठीक है. So you have stomata, lenticel, root, gaseous exchange in plant. ठीक है. क्लास बड़ा टॉपिक नहीं है वो. ठीक है, यहीं पे एंड हो जाता. एंड like if you ask me what will be the question there, then I will say mostly it will be write a short note on various modes of gaseous exchange in plant. So stomata, lenticel, root. Book में सिर्फ 3 lines दी हुई है. Okay, so I've just put a picture so that you understand it. Are we very clear, class? Just a minute, I'm looking at your chat. What have you asked? Just a minute. Yeah, somebody's asked me कि xerophyte में leaves are modified into spine. How do they respirate? Correct? Okay. Now class, you should know in xerophyte stem broad हो जाता है, green हो जाता है, वो photosynthesis कर रहा है, और वो stem के ऊपर openings होती है lenticels. Plus xerophytes don't grow fast. Okay, they don't grow very fast. तो उनका respiratory rate भी बहुत स्लो है, क्योंकि उनको पानी भी कम मिल रहा है, तो उनका फोटोसिंथेसिस भी स्लो होता है. और एक किसी ने मुझे पूछा है मिस रूट और बार्क इसलिए ना जैसे डेसिडस ट्री के लिए, नहीं, सारे ट्रीज के लिए. कोई भी ट्री होगा ना तो उसके रूट्स को क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए ना ब्रीदिंग के लिए, टू ग्रो. सी क्लास, पूरा ट्री होने तक आप कैसे ब्रीथ करोगे? तब तक भी तो कुछ होना चाहिए. सो रूट से लेट्स टेक अ सीड, वो जर्मिनेट हुआ तो पहले तो रूट ही आएगी. सो रूट से ब्रीदिंग हो रही. बार्क, क्योंकि जब तक लीफ से पहुंचेगा उससे जल्दी बार्क से पहुंच जाएगा ऑक्सीजन, तो नियर रखा है हमने सोर्स. यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल कमी नहीं. हाँ, डेसिडस ट्री में जब लीव्स गिर जाते हैं तब वो मेनली काम करता है. ओके, बट क्लास इसमें से रेस्पिरेटरी रेट लो होता है बिकॉज अ डेसिडस ट्री is showing minimum activity whenever the leaves fall. उसका growth rate, development rate सब रुक जाता. So respiratory rate भी क्या हो जाएगा? Slow हो जाएगा. ठीक है. Okay, and we move to animals. Class, ये जो टेबल दिख रहा है आपको horizontally placed है. Okay, थोड़ा आपको अपना फोन टेढ़ा करके देखना पड़ेगा. ये मैंने डायरेक्ट टेक्स्ट बुक टेबल का पिक्चर ली, डायरेक्ट यही टेबल आपकी टेक्स्ट बुक में. फाइन. Now, इसमें various respiratory surfaces और organ mentioned है. तो टेक्स्ट बुक ने क्या किया, एक टेबल बना के बता दिया. ओके, लेकिन उसमें बहुत सारे टर्म्स हैं जो आपको समझ में नहीं आते. सो इसको फॉलो करेगी इमेजेस और एक एक टर्म. मतलब ये जो एक एक कॉलम है वो मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगी. ठीक है. फाइनली टेक्स्ट बुक में इससे ज्यादा कुछ नहीं लिखा हुआ. But when they say respiration by external gill, respiration by book lungs, book gills, you should understand. ठीक है. And this table is there in the book. So I'm going one by one for simple to complex. From simple to complex. Now I'm where in animals. Plant खत्म हो गया. Plant उतना ही. और पूरा चैप्टर किसके ऊपर है? मेजॉरिटी ह्यूमन. तो बाद में हम एनिमल में भी कहाँ चले जाएंगे? सिर्फ ह्यूमन में. ठीक है. बट बिगनिंग में वी मस्ट नो द रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म इन अदर्स, रेस्पिरेटरी सरफेस इन अदर्स. सो लेट्स लुक हियर वेरियस टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस और ऑर्गन्स. नाउ क्लास, डायरेक्टली ऑर्गन और सिस्टम क्यों नहीं लिखा? क्योंकि कुछ ऑर्गेनिजम्स इतने छोटे हैं, दे आर सो स्मॉल कि सरफेस ही है उनके पास, ऑर्गन है ही नहीं. जब आप सिंगल सेल हो तो आपके पास कोई ऑर्गन कैसे हो सकता है? करेक्ट. और कुछ ऑर्गेनिजम्स बड़े हैं, उनके पास ऑर्गन्स हैं, और कुछ इतने डेवलप्ड है कि पूरा एक ऑर्गन सिस्टम है. करेक्ट. सो आई एम मूविंग फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स. ओके,
The first respiratory surface is plasma membrane. क्लास में वो टेबल में जो लिखा है वही बता रही हूँ आपको, लेकिन आप समझ जाओ वो हिसाब से. ओके, नथिंग मोर देन दैट. सो व्हाट इज आवर फर्स्ट रेस्पिरेटरी सरफेस इन पिक्चर? प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सबसे सिंपल एग्जांपल अमीबा. वी ऑल नो अमीबा is a unicellular protozoa. So which is the surface? Plasma membrane. ऑक्सीजन अंदर आ रही है, यू कैन सी द एरो, और CO2 बाहर जा रहा है. सिंपल डिफ्यूजन, वेरी सिंपल डिफ्यूजन. अगर आप बोलोगे मिस पैरामेशियम, यस, वो भी इस कैटेगरी में आ सकता है. यूग्लिना आ सकता है, क्लैमिडोमोनास आ सकते हैं. सो मोस्ट ऑफ द यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स यूज प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर एक्सचेंज ऑफ गैस. थोड़ा मल्टी में जाते हैं. स्पॉन्जेस मल्टी सेल्यूलर है. आपने लास्ट ईयर स्पॉन्जेस किया था, ऑरिफेरा याद है? साइकोन हमारा एग्जाम्पल था, किंगडम एनिमेलिया, बड़ा सा था. तो वहां पे मल्टी सेल्यूलर है, बट स्पॉन्ज का कोई हेड ही नहीं होता, कोई टेल नहीं होती, कोई लंग्स नहीं होती. सो व्हाट हैपेंस? वाटर एंटर्स थ्रू द पोर्स. पोरीफेरा, पोरीफेरा मतलब बहुत सारे पोर्स है ना बॉडी में. सो वाटर एंटर्स, उसी के साथ dissolved oxygen is entering, and with that water only CO2 is going out. I repeat, water अंदर आ रहा है pores में से. If you just a minute, I'll just mark it out. You can see here very carefully that what is entering is oxygen from the pores. एक term था ostia, and what is going out is again water. But वही water में क्या मिल गया plant स्पॉन्ज को? O2 मिला, और क्या मिला? CO2 जो उसने बाहर फेंक दिया. तो व्हाट इज द मीडियम हियर? वाटर. CO2 and O2 both are dissolved in water. So oxygen is coming in. Cells फटाफट उसको कर लेते हैं. And what CO2 they throw out, that goes out with water. So that is more easy. Correct? लेकिन सेल लेने वाले तो फिर से कौन आ जाएगा? Membranes, because sponges are cellular. You cannot call them tissue level. What you call them? Cellular organisms. Correct? They are not showing any epithelial tissue or some other tissue. Correct? So we move to Hydra. Hydra Coelenterata next group में आता है. Correct? Sponges से थोड़ा सा डेवलप ग्रुप है हमारे पास. Here you can see opening एक ही है अब मेरे पास, और वो ओपनिंग का नाम क्या है? माउथ ऑफ हाइड्रा. ये रहा. करेक्ट? क्या अंदर गया? वाटर. वाटर में क्या है? डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है. किसने यूज किया? सेल ने. व्हाट इज द सेल गिविंग आउट? CO2. वाटर कम्स आउट आल्सो फ्रॉम द सेम ओपनिंग. सिलेंट्रेटा मतलब सिलेंड्रिकल, हाइड्रा जेलीफिश टाइप के ऑर्गेनिज्म. सो यहाँ पे भी रेस्पिरेटरी सरफेस कौन है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन. वी नेवर से हाइड्रा इज शोइंग डबल membrane. We say it is diplo layer. Diplo layer मतलब cells दो layer के हैं. Cells are made up of two layers but not two tissues. We don't say epithelial tissue or we don't say muscular tissue. Multicellular, yes. So what are they using? Plasma membrane. तो हमारे 3 एग्जाम्पल हो गए, तीनों बुक में लिखे हुए हैं, इसलिए मैंने तीनों दिखाया. ठीक है? सो फर्स्ट सबसे सिंपल. क्लास बोलने के लिए वो सिंपल था, लेकिन पढ़ने के लिए क्वांटिटी बढ़ गई आपकी. ठीक है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कौन रेस्पिरेशन करता है? तो अगर CET में आ गया, नीट में आ गया, तो यू आर सपोज टू नो. ठीक है? एटलीस्ट एग्जाम्पल. सपोज इसमें उन्होंने एक रॉन्ग एग्जाम्पल डाला, तो क्वेश्चन विल बी हु इज नॉट यूजिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो फिर आपको ऑड मैन आउट में उसको पिक करना पड़े. ठीक है? इसलिए एटलीस्ट बुक के एग्जाम्पल हमको पता होने चाहिए. ठीक है? Now comes skin. Skin as a respiratory surface used by various organisms. थोड़ा सा हायर ग्रुप में आ गए हम लोग. And you can see the first one, planaria. Platyhelminthes was the term, if you remember. Platyhelminthes, flatworm. तो प्लेनेरिया फ्लैट है, उसकी स्किन एकदम मॉइस्ट रहती है, सॉइल में रहता है अर्थवर्म की तरह. एंड थ्रू स्किन it takes O2 and give out CO2. So which is the respiratory surface? The body wall. But what is the body wall? Skin.
दूसरा एग्जाम्पल देखो, एनीलिडा सेगमेंटेड वॉर्म, याद है? अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म हम रेगुलरली देखते ही है, करेक्ट? मॉइस्चर में दिखता है, पूरी स्किन मॉइस्ट होती है, अर्थवॉर्म को आप ड्राई नहीं कर सकते, करेक्ट? अदरवाइज इट विल डाई. So what is entering? Oxygen. And what is going out? Carbon dioxide is moving out. But through the skin, there is nothing like earthworm की nose, nostril, कोई opening नहीं है. Everything is happening by skin. When it is summer season, जैसे आजकल है, earthworm deep burrows में चले जाते हैं, एकदम नीचे जहाँ पे पूरी स्किन मॉइस्चर में होती है. ठीक है. थर्ड थोड़ा सा बड़ा एग्जाम्पल है हमारे पास, फ्रॉग है. एंड वी नो वेरी वेल व्हेन फ्रॉग इज इन वाटर इट इज यूजिंग स्किन एंड नॉट लंग्स. व्हेन फ्रॉग मिस इज वो इन लोग वाटर, ब्रीथ कैसे करते हैं फिर अंदर? किस में? पानी में? अंदर हेलो, बरो फ्रॉग में? की बात, बरो में? हाँ. तो पूरी बॉडी मॉइस्चर लगा हुआ है, मैम, द होल मॉइस्चर. आर यू गेटिंग इट? मैम, इट्स इन वेट कैटेगरी. हाँ, बोलिए बोलिए. the lecture time is ended actually. I've sent another link to everybody. You can join from that. Okay, 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 okay. Please join that class, okay?